Good morning, students. This is Rohit Shah here, and today we'll be seeing those diseases which are caused by these microorganisms. Earlier, we have studied already the beneficial microorganisms as well as the harmful microorganisms and the disease from where they are actually reproducing and how they get propagated, as well as we saw the penicillin vaccination, all those things. So today we'll be seeing these bacteria which are actually harmful for us. So first of all, first disease you can see here in the table, tuberculosis. Actually it is again a bacterial disease which is actually caused by air. Okay, the bacteria actually travels in air and it affects us. Now in this, what we have to do, keep the patient in complete isolation, keep the personal belongings of the patient away from those of others, vaccination to be given at suitable age. So these all diseases, not only tuberculosis, measles, chickenpox as well as polio. Okay, tuberculosis is a bacterial disease, but measles, chickenpox, and polio, they are all viral disease. That means virus. They are actually caused by viruses, and tuberculosis is actually caused through by air. The bacteria travels. Even the measles is spread through air, and chickenpox and polio, they can actually spread through air, but chickenpox can be caused due to contact with each other if you are touching each other, as well as polio can spread through even water. Now here you have to keep the patient in complete isolation. Like in the COVID, you are seeing already those who are affected, they are kept at complete isolation, means they should not be allowed to roam anywhere, as well as personal belongings, whatever the clothes and all those, it has to be kept away from those of others. And for that, vaccination is there. That means injections can be given so that the patient is cured. Now the next one is actually cholera and typhoid. They both are actually basically waterborne diseases. Cholera and typhoid are caused by bacteria. Okay, cholera is not only caused by water but also from the food also that you eat. If it is contaminated food and mosquitoes have breed over that, you can get cholera. Typhoid basically is spread through actually bacteria by water only. Now what has to be done? Maintain personal hygiene and good sanitary habits. Consume properly cooked food and boiling drinking water. Again, vaccination. So again you have to clean out the environment, or else wherever you are living, if you are suffering from these two diseases, even if anyone nearby or related to you is suffering from these diseases, you have to first clean up that his personal belongings or her personal belongings and keep them in a hygienic condition, and they have to eat properly cooked food as well as boiled drinking water. For this also you have injections or vaccination. Now the next one is hepatitis A, that is again caused by virus through a contact. Mode of contact will be water. Drink boiled drinking water and vaccination. Now you have to take boiling water, as well as for this vaccination is available. In the cases of cholera, typhoid as well as hepatitis A, you don't need to isolate the patient. If the patient is suffering from any of the disease, you don't need to isolate them. You can stay with them, talk to them, anything, but you have to actually teach them good sanitary habits. Next one is malaria. Again it is caused through protozoas. Okay, the mode of transmission is mosquito, stagnant water. Just now we spoke harmful microorganisms. Okay, they actually, the mosquitoes breed in stagnant water, and there the protozoa actually grows in their body. When the mosquito bites us, actually that time we are actually getting infected. So malaria, the more causative organism is actually protozoa, which is carried by actually mosquitoes. Use mosquito net and repellents. Spray insecticides and control breeding of insects. Okay, so malaria, you should not be affected by this if you follow proper proper sanitation habits. That is, while sleeping, the mosquito repellent as well as the net if you are using, you won't be suffering from these diseases.
So next we will be seeing disease causing microorganism in animals. Now there are microorganisms, many of them actually affect animals. Some of them actually infect plants. So we'll be seeing what is actually those microorganisms who are actually affecting animals. Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. Robert Koch discovered the bacterium Bacillus anthracis which causes anthrax disease. So many microorganisms are like that which actually cause disease not only in human and plants but several others are there which actually cause diseases in animals also. For example, here the anthrax example you must be remembering earlier. Likewise, 4-5 years back the anthrax was a lethal disease like corona itself. Okay, so anthrax was a dangerous human and cattle disease which was caused by the bacterium. That time actually many chickens were also even killed. You must be remembering chikungunya also. So foot and mouth disease of cattle is caused by actually virus. Here this virus actually or the bacterium was actually discovered by Robert Koch which actually was causing the anthrax disease through proper investigation. For that you require a lot of equipments as well as proper knowledge how to deal with them. Otherwise, if you are trying to study them and you get affected, then you won't be able to find it. So you have to take proper precautions while dealing with these bacteria or even viruses. Now, disease causing microorganisms in plants. You must have seen the color of the vegetables change, okay, or else sometimes some microorganism is growing. That time you actually are actually going to throw it away. तो इस टाइम पे आपको क्या क्या करना पड़ता है. Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. The disease reduce the yield of crops. They can be controlled by use of certain chemicals which kill the microbes. Okay, so बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो प्लांट में आपको अफेक्ट करेंगे ही करेंगे. जैसे वीट है, राइस है, पोटैटो है, शुगर केन में रॉट देखा होगा, रेडिश कलर का रॉट हो जाता है, ब्रिंजल एकदम ब्लैकिश हो जाता है. तो ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप इसी के लिए इन्हें फ्रिज में रखते हैं, ओपन एनवायरनमेंट में रखते हैं. कई बार आपने अपने घरों में देखा ही होगा. सो डिजीज़ के कारण क्या होगा, क्रॉप की यील्ड कम हो जाएगी. जितनी भी फसल होगी वो ख़राब होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी फसल कम हो जाएगी. सो ये किस से कंट्रोल हो सकते हैं, ये केमिकल्स से कंट्रोल हो सकते हैं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं. नाउ द नेक्स्ट डिजीज अगेन वी विल बी सीइंग द लिस्ट of plant diseases. Earlier we have seen the animal disease, mode of transmission and the microorganism responsible for it. So here the first one is citrus canker. It is again caused by bacteria. The mode of transmission is actually air. जो पेड़ में लग गए हवा के थ्रू ये बैक्टीरिया ट्रैवल करते हैं और उस फल को या फ्रूट को अफेक्ट करते हैं. साइट्रस कैंकर एक्चुअली नींबू के ऊपर होता है. रस्ट ऑफ व्हीट, it is again caused by fungi which can be actually mode of transmission is air as well as seeds. air मतलब हवा से हो रहा है as well as seeds जो है जो burst out होते हैं, spores आप लोगों ने पढ़ा ही है, bursting of the fruit. That time the seeds get propagated through the and the microorganism contaminates them. येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी. ओके, तो भिंडी में कई बार ये पीली कलर की लाइन आती है. इट इज़ अगेन कॉज्ड बाय वायरस. द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एक्चुअली इंसेक्ट. इंसेक्ट्स की बॉडी पे ये इतना इफेक्ट नहीं करता जितना ये प्लांट्स को करता है. कुछ वायरसेस बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही अफेक्ट करते हैं, नॉट टू एनिमल, नॉट टू एनी अदर थिंग. ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल. फूड प्रिजर्वेशन. अब खाने को बचाने के लिए ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम कैसे बच सकते हैं. पहले तो हमें खाने को बचाना है, तो हम कैसे बचेंगे. सो फूड इज स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स.
Spoiled food has bad smell and bad taste and causes food poisoning. Food can be preserved by protecting it from microorganisms. So food जो है ख़राब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. ख़राब खाने से ख़राब स्मेल आता है एज वेल एज बहुत ख़राब टेस्ट होता है. सो इससे हमारे पेट में फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है और जिसके कारण हम लोग डेथ तक जा सकते हैं. फूड कैन बी प्रिजर्व्ड. इसे प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है, बचाया जा सकता है फ्रॉम दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसके लिए तरीके दिए गए हैं. फूड कैन बी प्रिवेंटेड बाय डिफरेंट मेथड्स. दे आर केमिकल मेथड. Food like pickles can be preserved by using chemicals like salts and edible oils. Jams and squashes can be prevented by using sodium benzoate, sodium metabisulfite. These chemicals are called preservatives. जो हम मार्केट में ख़रीदते हैं अचार या अथाड़ा आप लोगों ने सुना ही है, ठीक है. पिकल्स में ज़्यादातर नमक से प्रिजर्व किया जाता है और रस थोड़ा बहुत तेल से, ठीक है. तो इसको प्रिजर्व करने के लिए ही नमक थोड़ा कभी कभार ज़्यादा भी डाला जाता है. ऐसे ही जैम है या और स्क्वैशेस है जो आप फ्रूट ड्रिंक्स पीते हैं, स्क्वैशेस, इनमें ये प्रिजर्वेटिव डाला ही जाता है. जैम्स में भी डाला जाता है. एग्जाम्पल उनके हैं सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. इन को नाम दिया जाता है, इनमें जो स्पेशल चीज़ें ऐड कर रहे हैं इनका नाम होता है प्रिजर्वेटिव्स. आप कोई भी मार्केट में बॉटल्स लेंगे, पिकल्स का हो, स्क्वैशेस का हो या फिर जैम का हो, तो आपको प्रिजर्वेटिव लिखा ही होगा उस बॉटल में. आप प्रिजर्वेटिव देखोगे कितना परसेंटेज है, बहुत कम मात्रा में डालते हैं जिससे ये खाना बच सके. नेक्स्ट वन इज बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट. फूड आइटम्स लाइक फिश, मीट, आमला, raw mangoes, tamarind, etc. can be preserved by using common salt. It prevents the growth of microbes. तो नमक से भी इन्हें प्रिजर्व किया जा सकता है. जैसे फ़िश है, मीट है, आंवला है और कच्चे आम हैं और इमली है, इन सबको प्रिजर्व किया जाता है नमक से, कॉमन सॉल्ट. तो इससे माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि पीएच का इम्बैलेंस हो जाता है. पीएच आप लोगों को नहीं मालूम, आप फर्दर क्लासेस में इसे पढ़ेंगे ही. Next one is by using sugar. Food items like jams, jellies, squashes, etc. can be preserved by using sugar solution. It prevents the growth of microbes. Again food items में जैसे जैम है, जेली है, चॉकलेट्स आते हैं, स्क्वैशेस होते हैं, इनको प्रिजर्व किया जा सकता है चीनी से, शुगर सॉल्यूशन. बट ये इकोनॉमिक मेथड नहीं है. रेदर देन दैट यू कैन यूज सॉल्ट. तो इससे भी ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स बच जाते हैं. By using oil and vinegar. Food items like pickles, vegetables, fish, meat, etc. are preserved by using oil and vinegar. It prevents the growth of microbes. तो ऑयल, तेल से, और विनीगर एक्चुअली एसिडिक एसिड होता है. आप लोगों के घरों में यूज़ होता ही होगा पिकल्स के टाइम पे. खट्टा सा एकदम स्वाद होता है, बिल्कुल आप पानी समझ के पिएंगे, पानी जैसा ही होता है देखने में, बट गला जलेगा. इसीलिए इससे हमें सिर्फ ये प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है. इससे माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो पाते. बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. हीटिंग फूड आइटम्स किल माइक्रोब्स. सिमिलरली स्टोरिंग फूड आइटम्स एट लो टेम्परेचर प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब. और सुबह आप देखते ही होंगे मिल्क को एक्चुअली हीट किया जाता है तो उसमें जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उसे किल कर दिया जाता है. फिर ठंडा होने के बाद उसे फ्रिज में रख दिया जाता है ताकि वो लो टेम्परेचर पे रखा जा सके. तो इससे भी माइक्रोब्स की ग्रोथ को रेगुलेट किया जाता है. पहले हम उसे गर्म कर रहे हैं, बैक्टीरिया किल कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसे फ्रिज में रख रहे हैं लो टेम्परेचर पे ताकि वो ख़राब ना हो. इन द नेक्स्ट वन it is actually pasteurization, the process of heating milk to about 70 degrees centigrade for 15 to 30 seconds and then suddenly chilling it to prevent the growth of microbes is called pasteurization. This process was discovered by Louis Pasteur. ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम है पेस्चराइजेशन. बट यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मिल्क को हीट करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 30 मिनट के लिए और सडनली उसको ठंडा कर दिया जाता है. जो आपके पैकेट्स में मिल्क आ रहा है उसको इसी प्रोसेस से स्टराइल किया जाता है. इस प्रोसेस को एक्चुअली डिस्कवर करने वाले थे लुइस पैस्चर. उनके नाम के रेस्पेक्ट में ही इस प्रोसेस का नाम रखा गया है पेस्चराइजेशन. अगला वाला बाय स्टोरेज एंड पैकिंग. मेनी फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम माइक्रोब्स. आप लोग देखते ही होंगे खाना सब कुछ खा लिया है तो रोटी वगैरह कैसरोल में ढक के रखा जाता है. एज वेल एज पिकल्स हैं, स्क्वैशेस हैं, इन सब के ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है ताकि कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म इसमें एंटर ना कर पाए. तो इसी के लिए ये लिड लगाया जाता है, एयर टाइट कंटेनर्स में रखे जाते हैं.
हियर यू कैन सी द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, सबसे पहले नाइट्रोजन आप लोगों को मालूम है एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आप लोगों ने सॉइल में पढ़ा ही ये चीज़ क्रॉप प्रोडक्शन में। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये फिक्स करते हैं सॉइल में। लाइटनिंग ऑल्सो एक्चुअली फिक्सेस नाइट्रोजन, जो बादल गरज रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने लाइटनिंग तो देखी होगी, दैट इज एक्चुअली अगेन फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब ये कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन दी सॉइल, ये दो प्रोसेस से एक्चुअली सॉइल के अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड बनते हैं। अब आप देखेंगे एक अपवर्ड एरो है सेंटर में, अपटेक बाय प्लांट्स। तो ये प्लांट्स ले लेता है, ठीक है। तो प्लांट्स लेके क्या करता है, प्लांट्स अपना खाना बना लेता है, उसके बाद एनिमल इन प्लांट्स को खाते हैं। एनिमल इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन 7th and 6th ऑल्सो दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स। तो प्लांट्स इन्हें ले लिया तो एनिमल इन प्लांट्स को खाएगा। उसके बाद प्लांट्स खाने के बाद डाइजेशन होगा, तो डाइजेशन के बाद एक्सक्रीशन प्रोसेस में वो नाइट्रोजनस वेस्ट ही छोड़ते हैं, दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। मरने के बाद भी नाइट्रोजन ही होगा, और अगर वो एक्सक्रीशन प्रोसेस से अपना वेस्ट मटेरियल रिमूव करते उसमें भी नाइट्रोजन ही होता है। द लास्ट पॉइंट, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होने के बाद होता क्या है, बैक्टीरिया जो है ये कंपाउंड्स ऑफ, इनको भी अब्जॉर्ब से बैक्टीरिया को भी चाहिए नाइट्रोजन, तो ये एक्चुअली वापस गैसियस नाइट्रोजन दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पे ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिक्स करने वाले कौन कौन से, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड लाइटनिंग, ठीक है। उसके बाद वो अपटेक हो रहा है प्लांट से, एनिमल खा रहे हैं, और वो वेस्ट वापस से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में ही आता है। अब सॉइल में ही बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इन्हें खा के रिटर्न भेज देता है वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पे। तो ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है ताकि नाइट्रोजन ना तो कम हो ना ज़्यादा हो। Now nitrogen cycle. The nitrogen in the atmosphere is converted into nitrogen compounds in the soil by nitrogen fixing bacteria and the blue green algae. अभी हमने पढ़ा। Lightning also converts the nitrogen compounds in the soil. तो lightning भी यही काम कर रहा है। The nitrogen compound in the soil is used by plants for the synthesis of proteins and other compounds. Animals feeding on plants get these proteins and other compounds. When plants and animals die, bacteria and fungi in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogen compounds in the soil, which are again used by plants. Some other bacteria convert some nitrogen compounds in the soil into nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. Hence, the nitrogen in the atmosphere almost remains constant. तो नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में, वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे और लाइटनिंग। ये सारे फैक्टर्स से नाइट्रोजन फिक्स होता है सॉइल में। अब ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है अगेन सॉइल एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट्स को देगा, प्लांट्स इससे अपने प्रोटीन्स और दूसरे कंपाउंड बना पाएगा। उसके बाद एनिमल्स इन्हीं प्लांट्स को खाएंगे और उसके बाद अपने वेस्ट प्रोडक्ट में रिलीज आउट करेंगे। अगर वो मर गए तो भी वो एनवायरनमेंट में रिलीज आउट होंगे। तो बैक्टीरिया और फंगाई इन एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को खा जाते हैं और इसमें जो नाइट्रोजन होता है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और दूसरे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ये नाइट्रोजन जो सॉइल में प्रेजेंट है इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके वापस गैसियस फॉर्म में रिलीज़ कर देते हैं। तो इसी को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं और हमेशा इसी के कारण नाइट्रोजन जो है हमारे एनवायरनमेंट में कांस्टेंट ही रहेगा। अब इसमें मैंने एक टेबल दिया हुआ है आपको, ये टेबल आपको बनाना है और आपको कॉजेस भी लिखने हैं। पहला है इसमें मलेरिया, कॉज क्या है, सिम्टम क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ये आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया होगा। डिसेंट्री या फिर अमेबिक डिसेंट्री, अगेन इसका कॉज, सिम्टम एंड प्रिवेंशन ये आपको ढूंढना है। मलेरिया मीजल्स ये भी आपको खुद ही ढूंढना है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, सिम्टम्स मतलब क्या लक्षण होते हैं और प्रिवेंशन इनसे कैसे बचा जा सकता है। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस बताया ही है मैंने आपको, ये आपको अगेन कॉज देखने हैं, सिम्टम्स और प्रिवेंशन। लास्ट हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन हमने पढ़ा ही, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है एंड उसके सिम्टम्स क्या हैं।
होपफुली आप लोग ये फाइंड आउट कर पाएंगे। एंड कोई भी इसमें डाउट हो तो स्कूल रीओपन होने के बाद हम लोग डाउट्स क्लियर करेंगे ही करेंगे। बट ये टेबल एज वेल एज जो भी आज पढ़ा आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिजीज़ इन प्लांट्स, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। थैंक यू किड्स।